السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے غزہ میں خوراک کے بحران کے شکار فلسطینیوں کے لیے 100 ٹن امدادی سامان کی 28ویں کھیپ اسلام آباد سے روانہ کر دی گئی، جس میں 65 ٹن کین فوڈ، 20 ٹن خشک دودھ، 5 ٹن بسکٹ اور 10 ٹن ادویات شامل ہیں۔ امدادی طیارہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور NDMA حکام نے روانہ کیا۔ امداد اردن کے ذریعے غزہ کے متاثرین تک پہنچائی جائے گی۔ ڈاکٹر حفیظ نے بتایا کہ الخدمت اب تک ہزاروں ٹن امداد غزہ بھجوا چکی ہے اور مریضوں کو پاکستان لا کر علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ آسٹریلیا سڈنی میں بارش، قانونی رکاوٹوں اور حکومتی مخالف کے باوجود آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فلسطین کے حق میں ایک عظیم الشان مارچ منعقد ہوا، جس میں وکی لیکس کے بانی سابق وزیر خارجہ باب کار اور رکن پارلیمنٹ ایڈ ہوسیچ سمیت تقریباً 1 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ مارچ ہاربر برج پر لینگ پارک سے شروع ہوا اور پولیس کے مطابق 90,000 جبکہ منتظمین کے مطابق 3 لاکھ افراد شریک تھے۔ نیو ساؤتھ پولیس نے سیکیورٹی خدشات کے باعث مارچ روکنے کا حکم جاری کیا، تاہم عدالت نے مظاہرے سے 24 گھنٹے قبل مظاہرین کے حق میں فیصلہ دیا۔ دینا میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 152 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ گرفتار افراد کو ابتدائی طور پر افغان کیمپ منتقل کیا گیا ہے، جہاں تمام بنیادی سہولیات اور سیکیورٹی انتظامات موجود ہیں۔ فیصل ٹاؤن پولیس نے کارگو کمپنیوں کے ذریعے موبائل فون سمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگا کر کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزمان شہریوں سے موبائل فون چھین کر پشاور سمگل کرتے تھے۔ ملزمان سے 10 موبائل فونز، 2 لاکھ نقدی اور 2 پسٹل برآمد ہوئے۔ لاہور میں DG پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن۔ 42 میٹ شاپس اور سپلائرز کی چیکنگ کے دوران 1610 کلو غیر معیاری گوشت اور مردہ مرغیاں تلف کر دی گئیں۔ 2 مقدمات درج کیے گئے اور 2 افراد کو جرمانے کیے گئے، جبکہ ایک ملزم کو گرفتار بھی کیا گیا۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بیمار یا مردہ مرغی کی سپلائی سنگین جرم ہے۔ خیرپور اور گردونواح کے علاقوں میں چمگادڑوں کے فصلوں پر حملے جاری ہیں، جس سے آم، امرود، کیلا، نارنگی اور پھولوں کی فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ کاشتکاروں نے متعلقہ اداروں سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ حیدرآباد میں DIG کی ہدایت پر شہید واحد بخش آڈیٹوریم میں منشیات سے متعلق مقدمات میں قانونی بہتری اور نئے آرٹیکلز 2024 کی تشریح پر ایک روزہ تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں رینج کے مختلف تھانوں سے انویسٹیگیشن افسران نے شرکت کی۔ شجاع آباد میں زمینی تنازع پر بااثر زمیندار نے غریب مزدور کو پر کتے چھوڑ دیے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اہل علاقہ نے مزدور کو بچا کر تشویشناک حالت میں سول ہسپتال منتقل کیا۔ واقعے کے خلاف شدید احتجاج پر پولیس نے زمیندار کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ جنگ میں یوم شہدائے پولیس کے موقع پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں کیا خاص تھا اور کون سی اہم شخصیات نے شرکت کی، تفصیل بتائیں گے عمران کو۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج 4 اگست یوم شہداء پولیس کے موقع پر آج جھنگ پولیس کی جانب سے ایک چوک کے اوپر شمع روشن کی گئی ہیں شہداء پولیس کے لیے اور شہداء کے بچوں کے لیے خصوصی سواریوں کا انتظام کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر جھنگ موجود ہیں، مزید تفصیلات ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، آج کے حوالے سے ذرا تفصیلات ہمیں دیکھیے۔ جی اس طرح ہمارا یہ نیشنل ڈے ہوتا ہے جو 4 اگست ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں یا وہ چاہے جتنے بھی ہمارے آرمی کے ہوں، باقی جتنی ہماری فورسز ہیں، تو یہ دن پورے پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر میں جنگ کی بات کروں تو ہمارے 39 شہداء ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا شہید آپ کو پتہ ہے کہ بختر بند گاڑی کا انسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ہمارے 3 جو شہداء تھے، اور آخری ہمارا شہید ہے وہ 2022 کا ہے۔ تو جتنی بھی فیملیز آئی ہیں، یہ صرف ان کی ایک تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اپنے شہر کے لیے دی ہوں، اپنے صوبے کے لیے دی ہوں، اپنے ملک کے لیے دی ہوں، ان کی یاد ہے، اور باقی جو ان کی فیملیز ہوتی ہیں ان کو کہ اس سے یہ میسیج نہیں جاتا کہ اگر کوئی بندہ شہید ہو گیا تو اس کو ہم نے جو ہے نا بالکل جو ہے نا اس سے قطع تلقی کر لی ہے۔ تو جس طرح یہ بگی اور یہ سواریوں کے ساتھ جتنی پولیس کی فورس تھی، وہ چاہے ہماری آپ نے دیکھا ہوگا لیڈیز کانسٹیبل ہوں، جتنی ہماری فارمیشن ہیں، SP صاحب بھی ہوں،
तो पूरे एहतराम और प्रोटोकॉल के साथ कि सिर्फ उनकी याद को सेलिब्रेट करने के लिए और उनके पेरेंट्स को ये बताने के लिए कि ये जो कुर्बानी हुई है वो रायगा नहीं है, वो तो वैसे ही जन्नत में है ना। जो आपको पता है वो शहीद का जो खून है वो कौम की हयात है, तो वो कुरान पाक में भी है कि ये आप उनको मुर्दा मत के, वो शहीद हैं, आपको पता नहीं वो खाते भी हैं। तो ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि जिनके ये बच्चे शहीद हुए हैं, जिनकी वक्ती तौर पे लगता है कि ये सुहाग गुजरे हैं, लेकिन ये खुशकिस्मत लोग हैं। वो इंशाअल्लाह वो उनके लिए भी जो ना बहस रहमत भी होगा और कल को उनकी शफात का भी जो मौका मिलेगा और बहस बनेगी। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर जंग बता रहे थे कि जिंदा कौमें कभी भी अपनी शोहदा को नहीं भूलती, हम हमेशा उनकी फैमिली और उनके बच्चों के साथ खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया, इमरान गुल हमें अपडेट कर रहे थे। बार्सिलोना में ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और POAF यूरोप के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी मार्का हक कॉन्फ्रेंस और रैली मिली जोश व जज्बे से मुनक़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत व नात से हुआ, जबकि मुकर्रीर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। आज़ादी के शोहदा को खराज अकीदत और नई नस्ल को मुल्क का सरमाया करार दिया गया। रैली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मेलसी में मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम शोहदाए पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी DSP सईद अहमद सयाल थे। तकरीब में शमअ रोशन की गई और मुकर्रीन ने पंजाब पुलिस और पाक फौज के शोहदा को कौमी हीरो करार देते हुए उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश किया। DSP ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा किया। मेलसी में अंजुमन आड़तियाँ गला मंडी के नए काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब एक निजी मैरिज मार्की में मुनक़िद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए वर्सा सकाफ़त औरंगज़ेब खान समेत मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ने नौमुंतखब काबीना से हलफ लिया और गला मंडी मेलसी की तरक्की के लिए 12 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान किया। बूरेवाला में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में गोल चौक पर विहाड़ी पुलिस के शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए शमअ रोशन की गई। DSP राना उमर टीपू, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। शुरका ने शुहदा की कुर्बानियों को सराहते हुए उनकी याद में दुआएं की और कौमी जज्बे का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। साहिवाल पुलिस लाइन में DPO राना ताहिर रहमान खान की ज़ेर क़यादत यौम शुहदाए पुलिस के मौका पर शुहदा के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी और दुआओं का अहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शुहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। मुल्क भर की तरह पतोकी में यौम शुहदाए पुलिस के सिलसिले में कचहरी चौक पर शमअ रोशन की गई और शुहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। DSP सज्जाद अकबर, SHOs, अंजुमन ताजरान, सहाफ़ी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DSP ने कहा कि पुलिस के जवानों ने आवाम की हिफाजत के लिए जानों का नजराना दिया है और महकमा पुलिस शुहदा के खानदानों के साथ खड़ा है। कसूर में यौम शुहदाए पंजाब पुलिस के मौका पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO ईसा सुखेरा, डिप्टी कमिश्नर इमरान अली, MPA नईम सफदर, ताजरान पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीर ने कसूर पुलिस के 35 शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी कुर्बानियों को कौम का फ़ख्र करार दिया। तहसील चूनिया के गांव डैग में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुक़दान है, जहां बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल मौजूद नहीं, जबकि बच्चों का वाहिद स्कूल भी खस्ता हाल और दीवारों से महरूम है। हाई स्कूल 7 किलोमीटर दूर होने और रास्ता ख़राब होने के बायस बारिश में बच्चियां तालीम से महरूम रहती हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ और हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। जी, वज़ीर आला साहबा से हमारी अपील है कि हमारे गांव को भी सहूलियात से नवाजा जाए। आपका प्रोग्राम है कि गांव की सड़कें को बनाई जाए। हमारी तो 33 साल पहले सोलंग लगाया था, वो भी टूट चुका है। मेहरबानी फरमाकर हमारे गांव का सोलंग लगाया जाए और सड़क बनाई जाए। और स्कूल है जो बच्चों का
3-4 कमरों वाला, उसकी भी दीवार गिर चुकी है और बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई सहूलत नहीं। एक प्राइमरी स्कूल में बच्चियों और बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं और ना सीवरेज का निकास है, ना सुई गैस है। बिजली का एक खस्ता हाल ट्रांसफार्मर आज से 40 साल पहले का है। मेहरबानी फरमाकर हमें एक और 100 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाए और साफ पानी के लिए फ़िल्टर दिया जाए और स्कूल बच्चियों का भी दिया जाए। और मेहरबानी फरमाकर हमारी सड़क को तकरीबन 5-6 किलोमीटर का एक टोटा है जो गांव ढिग की तरफ बरकी 16 चक से आता है और ढिग से लम्बे खालसे तक भी सड़क होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भी ज़रूरियात है। हमारा ना कोई मरीज़ आ सकता है, ना कोई हमारे साथ रिश्तेदारी करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं आपके गांव को सड़क ही कोई नहीं, रास्ता ही कोई नहीं जाता, हम कैसे आएँ? लिहाजा मेहरबानी फरमाकर वज़ीर आला साहिबा हमारी भी दाद रसी कीजिए। हमने 35 साल से नून लीग को वोट देते हैं और हर दौर में हमारे गांव में नून लीग कामयाब हुई है। इसलिए मेहरबानी फरमाकर आपके अगर दौरे हुकूमत में हमारी सड़कें ना बनी, हमारे मसाइल ना हल हुए तो किस दौर में होंगे? मेहरबानी फरमाकर साढ़े इस मसाइल को हल किया जाए। और वज़ीर आज़म साहब जनाब साड़ी गुजारिश है कि जनाब तुसी भी साडा ये काम कराओ, क्योंकि तुसी साडे मुल्क के पाकिस्तान दे मुहाफिज हो और तुहानू सारा पता है कि किस तरह आवाम गरीब असी पसमंदगान इलाके ही रहने। साडे बच्चों तलीमी जरूरियात जड़ियां ने असी वो भी नहीं पूरियां कर सकते, दूर दराज तक जाना पैंदा है। अगर बारिश पै जाए तो साडे बच्चे स्कूल ही नहीं जा सकते। 17 चक में एक हाई स्कूल है और तकरीबन 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है। इसलिए मेहरबानी फरमाकर हमारी स्कूल के मसाइल को भी हल किया जाए और बच्चों को स्कूल भी दिया जाए और हमारा रोड भी बनवाया जाए और बच्चियों को अलहदा स्कूल बनाया जाए और सुई गैस की सहूलत जो हर गांव-गांव में दी गई है। क्या हम पाकिस्तान के रहशी नहीं? मेहरबानी फरमाकर हमें सुई गैस भी दिया जाए और सीवरेज साफ पानी जो पाकिस्तान की मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा पंजाब कहती हैं, हमें भी उनसे मसला हल, हमारा भी मसला हल किया जाए, क्योंकि हम भी पाकिस्तान पंजाब के शहरी हैं। अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने तहसील निश्तर का दौरा करते हुए इंतजामी उमूर और सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। एसी निश्तर मोहम्मद सलीम ने तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि LWMC वासा और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। DC ने सफाई, सीवरेज और कूड़ा क्रिकेट कलेक्शन के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी, क्लीन लाहौर मिशन और अवामी शिकायत का फौरी अजाला ज़िले इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। कहूटा के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में अंडर 18 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें तहसील भर से 10 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कहूटा ने जीत का टाइटल अपने नाम किया। तकरीब में प्रिंसिपल शौकत रहीम और दीगर समेत सियासी और कारोबारी शख्सियात और कॉलेज स्टाफ ने शिरकत किया। रिंडा मोहम्मद पनाह के रहायशी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं और सरापा एहतजाज है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर मोहम्मद तारिक। जी तारिक, बताइएगा। जी, आज हम मौजूद हैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नोहाई इलाके इलाहाबाद, जहाँ पे कब्रिस्तान का एक मसला है, कब्रिस्तान का मसला है और यहाँ पे रोड का भी काफ़ी अरसे दराज से मसला है, जिसमें बाज़ औक़ात यहाँ पे जो गटर सीवरेज लाइन का पानी है वो कब्रिस्तान में चला जाता है। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं हम इस हवाले से कि इधर कब्रिस्तान के हवाले से हमें बताएं यहाँ पे जो मुश्किलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि इलाहाबाद 200 साल का पुराना शहर है और ये उसका शहर की आबादी है मुहाज़ करूँ इलाहाबाद। 200 साल पुराना कदीम कब्रिस्तान इलाहाबाद के तीसरा बड़ा कब्रिस्तान है, जिसका हाल ये है जो बारिश आती है सीवरेज का पानी और यहाँ का सारा पानी जो इकट्ठा होता है गटर वगैरह का सारा तुम्हारे आपके सामने ये कब्रिस्तान में जाता है। और ये दीवार अहले इलाके ने शहरों ने चंदा करके तामीर कराई थी, जो कि आज टूट फूट का शिकार है। कोई दीवार मौजूद नहीं है यहाँ पे, सारी दीवार टूट चुकी है। जो गंदा पानी आता है यहाँ आता है। ठीक है, हम बाला अफसरान से गुजारिश करते हैं, इल्तमास करते हैं, जो ये रोड 20 साल पहले मेटर रोड बना हुआ था, आज टूट फूट का शिकार है, ख़त्म हो चुका है। ये रोड दोबारा बनाया जाए और इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी दोबारा कायम की जाए, ताकि ये कब्रिस्तान के पानी, गंदा पानी कब्रिस्तान में ना ठहरे। लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। भैया लोग अहल इलाके को गालियाँ देते हैं कि तुम्हारा पानी आता है, उनका आता बारिश का पानी, सीवरेज लाइन नाकारा है, सीवरेज आए दिन सीवरेज लाइन बंद हो जाती है। बाला अफसर से गुजारिश है सीवरेज लाइन नहीं लगी जाए, मेटर रोड दिया जाए और इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी दी जाए। वस्सलाम। जी, अब हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये रोड की सूरत हाल और कब्रिस्तान की जो 4 दीवारी नहीं है। मोहम्मद तारिक हमें अपडेट कर रहे थे। GC यूनिवर्सिटी हैदराबाद में यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में मार्का हक के उन्वान से फ़िक्री और तालीमी सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमजद अली और दीगर समेत फैकल्टी, तलबा, अफसरान ने शिरकत की।
मुकर्रीन ने आज़ादी, अदल और सच्चाई की अहमियत और नौजवानों के किरदार पर जोर दिया। मेलसी के नवाही इलाके दो कोटा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद उस्मान वर्ल्ड मास्टर मोहम्मद सिद्दीक ने FPSC के तहत कामयाबी हासिल करते हुए FBR के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बतौर इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू तैनाती हासिल कर ली है। इस कामयाबी पर अहले खाना, असातिज़ा और मोअज़्ज़िज़ीन ने मुबारकबाद पेश की है। हफ्साबाद के फुआरा चौक में हार्डवेयर शॉप की बालाई मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। ज़राए के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम शुहदा पुलिस अकीदत व एहतराम से मनाया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस के 1700 शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अजीम सपूत दहशत गर्दी के खात्मे और अमन के क़याम की खातिर जानों का नजराना दे चुके हैं। उन्होंने शुहदा की माओ और अहले खाना को सलाम पेश करते हुए उनकी फलाह को अपनी अवलीन तरजीह करार दिया। शुहदा की कब्रों पर गार्ड ऑफ ऑनर, फातह खानी, कुरान खानी और दुआओं का अहतमाम किया गया, जबकि सीनियर अफसरान ने अहले खाना से मुलाकात करके उनकी कुर्बानियों को सराहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे में देरपा और मौसर तामीरात को यकीनी बनाने के लिए अहम शाहराहों में सर्विस डक्ट डालने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए सेफ सिटीज़, टेली कम्युनिकेशन समेत दीगर इदारों से मुशावरत के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। तर्जुमान महकमे हाउसिंग के मुताबिक सर्विस डक्ट से सड़कों को बार बार तोड़ने की ज़रूरत ख़त्म होगी, शहरियों को सहूलत मिलेगी और वसाइल की बचत मुमकिन हो सकेगी, जबकि माहौल दोस्त पॉलिसियों के तहत मनसूबा बंदी का अमल भी जारी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।